Huh? Yeah. Sir, audible Okay. very much. Fine. Then while you are taking your class, see that you are taking the screenshot also, because the new ED has joined. So he has given the instructions, the teachers, while they are taking their classes, they will be sending the screenshot having all those features reflected on the screen of their particular period. So see that as you are sending the report also, you will be sending the screenshot also. Along with the report, you will be sending the screenshot also of the particular subject, particular class with section. So this is mandatory for all of you, because the same thing I have to forward to the ED also, the new ED. So see that is it official instruction. It is being followed by all of us. Okay. And then coming to see that somebody was talking like that, na? Please see that we all are having the power bank. Sorry, sir. I mean, meeting is going on, sir. Online meeting is going on. Excuse me, sir. HM is there. Thank you, sir. I will get back. The time is left. Sorry, I mean, Renu. hello. I will Yes, sir. continue. एंड फर्स्ट थिंग ना, Yes, जैसे sir. आप लोग बोलते हैं ना कि मेरा टॉपअप नहीं है, मेरा पास चार्ज नहीं है, तो आप लोग सभी लोग पावर बैंक रखिए, सभी आप ऐसे नेटवर्क रखिए कि आप लोग ये सब लेम एक्सक्यूजेस मुझे सुनने अच्छे नहीं लगते और ऐसा करना भी नहीं है. See that we are well equipped as per the mobile is concerned, laptop is concerned, power backup is concerned. We all are equipped with all those accessories. Okay, because this is only our bread and butter. तो इसमें कोई लेकुना और कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है हम सबको. Okay. So I will not take much time. And then recently I forwarded some notices also in the WhatsApp group also. Please see that you all are referring it. अभी जो एजुकेशन कोड है उसको भी रिफर कर लीजिएगा, एक्नॉलेज कर लीजिएगा. कुछ और भी पॉइंट्स मैंने अराउंड 15 पॉइंट्स आपको भेजे थे, उसको भी रिफर कर लीजिएगा. और जो भी सीबीएसई की सर्कुलर है, प्लीज रिफर इट. और जो 9th क्लास और 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आई रिक्वेस्ट टू क्लास टीचर्स, प्लीज डू इट वेरी मेटिकुलसली. अगर कोई कंफ्यूजन है, केस टू केस आप डिस्कस भी कर सकते हैं. सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू रेस्ट ऑफ द क्लासेस 10th and 12th also. Okay, and thank you to all class teachers who are not having turn, but even when they have turned up, thank you very much. And now I hand over uh, I mean the mic rather to the podium rather to the Lily ma'am. Lily ma'am, please start. Over to Lily ma'am. Good afternoon, sir. Please carry on, ma'am. I'm there. Good afternoon to all my dear colleagues. Today we have assembled here to discuss on the conduct of the first term exam in the new digital frame. There are few points in my mind I want to share with all of you. The first point is लिली मैम वीडियो ऑन करिए. लिली मैम सॉरी, वीडियो ऑन कर लीजिए. गुड गुड. Am I audible? प्लीज कैरी ऑन. Yes, ma'am. yes, ma'am. How रेनू मैम माइक ऑफ करिए. रेनू मैम माइक ऑफ करिए. रेनू मैम माइक ऑफ करिए. हाँ मैम, स्टार्ट. Yes, ma'am. There are few points in my mind and I want to share with all of you. The first point is how to make format for subjective and objective question paper, which I am going to share with all of you. The second point is how to send subjective and objective paper in Google Classroom and how to evaluate it by using mobile and laptop. This segment will be explained by Ms. Harshita and Mr. Hassan. Ms. Harshita will also tell you how to maintain absentee records in Google Form. Now, coming to the third point, how to enter marks obtained by the student in first term exam will be explained by Padam sir. Although I have already given the format of question paper in class teachers and non-class teachers group, but still
I want to share my screen and we discuss few points with you. We all are learning. We all are in a learning stage, do not know much about it, but growing with the demand of present scenario. If you have any queries, you can ask, but after the presentation. Now I am going to present my screen. Now, coming to the first point, the date of submission is 27th September. Objective paper to be made in Google Form. Syllabus covered should be from April to September. सौरभ सर आवाज सही नहीं आ रही है. सौरभ सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Now, coming to the setting point. I am showing the picture. You have to tick mark, select email address, restrict to user in Air Force School, Chakeri, Kanpur, and limit to one response. Okay. Now, coming to the next part, presentation, you have to put tick mark, show progress bar. Only show progress bar. And the third setting is the quiz part. To make it as quiz, release grade later after manual review. In that you have to click. Only that is the part. Now next is how the format for the first term paper objective. It is my humble request to all of you, please follow the steps. The format should be same for all the teachers. First, I have written here online exam, first term objective, session 2020-21. Then you have to write class, subject, maximum marks and time. After that, come to the general instruction. It is common for all of you and it is already forwarded in WhatsApp group. Now, the next and the most important part is there are only 4 mandatory questions. Only 4 mandatory questions. What are they? The first is student's roll number. This should be the first question. Student's roll number. Coming to the second question, student's name. Then class and section. And last, the class teacher's name. Last one is class teacher's name. These are the 4 mandatory questions. Rest questions are not mandatory. Okay? Only these 4 questions are mandatory questions. Now coming to the format of subjective paper. This is also forwarded in the WhatsApp group. First of all, you have to write first term examination subjective, session 2020-21, then class, subject, maximum marks and time. Then coming to the general instruction, all students should note that you have to write your name, class, section, roll number and page number on each page of your answer sheet. Click the picture of each page and make a PDF of it and upload together in Google Classroom. Write your answer in own handwriting, no typing.
Reading time starts from 8:30. The reading time is 8:30 to 8:40. Writing time is 8:40 to 9:40. And uploading time is 9:40 to 10 a.m. And the seventh, teacher can add any point related to their subject. This timing format is for class 6th to 10th only. And for class 11th and 12th, since the timing is different, they will write their time accordingly. Okay. Now, coming to the PGT class, class 11th and 12th, teachers teaching 11th and 12th are requested to change point number 5 and 6 according to the time allotted to them. Now, question paper, English paper will be 80 marks and the duration is 3 hours and 15 minutes. It is totally subjective paper. Similar manner, Hindi is also 80 marks, subjective, duration is 3 hours and 15 minutes. Next paper is maths, 20 marks in objective format, that is in Google form, and 60 marks subjective. It is a subjective paper. The time is 2 hours and 45 minutes. 30 minutes is for objective, and for subjective, the time allotted is 2 hours and 45 minutes. In a similar manner, other questions paper are also written here, which I have already forwarded to the group. You can see from there. Okay. And it is my request to all of you, please give a practice test to the student for objective, that should be held in Google form, and subjective. Both the ways. At least they should aware about it, how to write, how to click the photo, how to make PDF, and how to attach in Google Classroom. Now, I am inviting Ms. Harshita to explain the second point of the meeting, that is how to send subjective and objective papers to Google Class by mobile or laptop. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. A very good afternoon, principals and my worthy colleagues. First of all, I am share with you how can you just fill the absent Google form. So this is a Google form. This is a basic Google form. First of all, you have to be write the student's name over there, then roll number. Select the class according to you and all these subjects. And this is the examination date. You have to be write only examination date over there. Suppose there's a computer exam on say 16, a student is not able to take that place, that particular exam, so you have to be write that 16th over there. लिली मैम आपको बताएंगे कि आपको ये फॉर्म कब तक फिल करके
सबमिट करना है एंड टाइम ड्यूरेशन विल बी देयर। वो टाइम ड्यूरेशन आपको लिली मैम बाद में डिस्कस करेंगी कि 7 o'clock और 6 o'clock तक आपको अपना गूगल फॉर्म सबमिट कर देना है। इफ देयर इज अ 3 students, so you have to be just fill that particular form 3 times, as well as if you have a 4 or 5 students, तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। पदम सर ने इसके पहले एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करा था। वो एक्सेल शीट जनरेट करने में कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके बिहाफ पे हम लोगों ने ये गूगल फॉर्म बनाया है। ऑलरेडी इसमें एक शीट जनरेट होगी और जनरेट होने के बाद डेटा, जस्ट वेट, इस फॉर्मेट में ऑलरेडी डेटा कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लास एंड स्टूडेंट्स एंड डेट एज वेल। सो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, केवल यू हैव टू बी राइट ओनली द नेम, the student's name and roll number and select each and everything. You have to be mention date only, that particular exam date. This is a mandatory thing. आपको केवल एग्जाम डेट ही मेंशन करना है वहां पे। आप अगर फॉर्म इवन नेक्स्ट डे फिल कर रहे हो या उसी सेम डे फिल कर रहे हो, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड फिर हम फिल्टर करके डेटा पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी एक्सेल शीट जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल फॉर्म की, गूगल क्लासरूम की। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हसन सर। वो बताएंगे आपको कि कैसे अटैच करना है क्वेश्चन पेपर, और फिर मैं बताऊंगी कि स्टूडेंट्स उस पर कैसे बिहेव करेंगे, और फिर सर बताएंगे कि आप उस पर कैसे इवेल्युएट करेंगे स्क्रीन शेयर करके। देन मैं बताऊंगी कि स्टूडेंट्स को आपकी स्क्रीन कैसे रिप्रेजेंट होगी। ओवर टू हसन सर। Okay, good afternoon to all. Saurabh sir, I am audible. Saurabh sir. You are audible. Okay sir. Audible, audible. Okay sir. मैंने यहाँ पे कुछ गूगल क्लासरूम पे एक क्लास बनाया हुआ है। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने गूगल क्लासरूम पे एक क्लास बनाया हुआ है मीटिंग ऑनलाइन एग्जाम के लेकर के। आज ही मैंने बनाया है, ये आज की मीटिंग को लेकर के है। इसमें मैं एज अ टीचर ज्वाइन हूँ और हर्षिता मैम एज अ स्टूडेंट ज्वाइन है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ मेरा नाम लिखा हुआ है, नीचे हर्षिता मैम। क्लास वर्क में हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्लस पे, जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है असाइनमेंट का। असाइनमेंट में जैसे अगर मुझे ऑनलाइन एग्जाम लेना है बच्चों से रिटर्न में, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए टाइटल दे सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम या फर्स्ट टर्म एग्जाम। डिस्क्रिप्शन पे हम यहाँ पे दे सकते हैं कि ये कंप्यूटर का एग्जाम है। मार्क्स अगर हमने 20 डिसाइड किया हुआ है तो यहाँ पे 20 दे सकते हैं, टोटल मार्क्स 20 है। ड्यू ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन असाइनमेंट में दिया होता है। यहाँ से जैसे हम लोग गूगल फॉर्म पे हम लोग को बंद करने का ऑप्शन था टाइम ओवर होने पे, तो यहाँ में बंद करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे लेट सबमिट करेंगे तो वो ऑलरेडी शो कर देगा। आप लोग पहले भी इस असाइनमेंट वाले ऑप्शन को यूज कर चुके हो तो आपको पता होगा। ड्यू के लिए मैंने डाल दिया, जैसे ये अभी हमारी मीटिंग चल रही है 1 और 40 हो रहा है, मैंने 50 डाल दिया यानी 10 मिनट। और टॉपिक में कभी ले सकते हैं कभी नहीं भी ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक बना रखा है फर्स्ट टर्म का, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया।
देन यहाँ पे जब हम टाइम सेट कर रहे होंगे तो ध्यान देना होगा कि AM है, PM है, टाइम वगैरह सारी चीजें क्लियर करके चलेंगे और डेट वगैरह भी सही से चेक कर लेंगे एक बार। देन उसके बाद ऊपर की तरफ राइट साइड पे एक ऑप्शन दे रहा है अटैचमेंट का। ऊपर की तरफ राइट साइड पे एक ऑप्शन दे रहा है अटैचमेंट का। हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हमारी ड्राइव पर कोई फाइल पड़ी हुई है तो हम ड्राइव से उठा सकते हैं। अगर ड्राइव पे नहीं है, हमारे फोन पे है, तो हम फोन से उठा सकते हैं। फोन फाइल में जाकर के बेसिकली हमारे पास डॉक्यूमेंट्स फाइल है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल ही लूंगा, PDF वगैरह। तो जैसे मेरे पास क्लास 6 का एक ब्लूप्रिंट है, ये मैंने PDF फाइल क्वेश्चन पेपर एज अ क्वेश्चन पेपर मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। और अटैच करने के बाद जब हम इसे सेंड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है, स्टूडेंट कैन ओनली व्यू दिस फाइल। तो हमें इस ऑप्शन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहे हैं, स्टूडेंट कैन व्यू, स्टूडेंट कैन एडिट और मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। तो हमें स्टूडेंट कैन व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कैन एडिट और कैन ईच वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है अगर हम एज अ क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं तो। और अगर हम कोई ऐसा पेपर भेज रहे हैं जिसमें बच्चा खुद से ड्राइंग वगैरह या टाइप वगैरह कर सकता है तो उसमें कैन एडिट का ऑप्शन हम लगा सकते हैं। तो वैसे हम लोग फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो करा रहे हैं उसमें हम लोग को स्टूडेंट कैन व्यू वाला ऑप्शन ही लेकर चलना है, देन इसे असाइन कर देना है। असाइन करने के बाद एज अ स्टूडेंट उसके फोन में किस तरह से असाइनमेंट खुलेगा और वो उसे कैसे सबमिट करेगा, ये वाला पार्ट आपको हर्षिता मैम बताएंगे। Okay, again I'm going to represent my screen. So, meeting online exam. Then new assignment. हसन सर ने अभी मुझे एक असाइनमेंट दिया है, दिस इज अ फर्स्ट टर्म 2020 एग्जाम। ये ब्लूप्रिंट मेरे पास आया है। स्टूडेंट्स इन्हें PDF फॉर्म पे ही हमें अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों को भेजना है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लूप्रिंट है क्लास 6 का कंप्यूटर पेपर का ब्लूप्रिंट है कि बच्चों को कौन सा कितने सब्जेक्ट का मैंने बच्चों को असाइन किए हैं चैप्टर्स, बेसिकली वो ये ब्लूप्रिंट है। फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, देन I will definitely click on your work. There is a add attachment option. Click on the add attachment. Then you have to select, a student will select the drive or the file. अगर उसने फोटो क्लिक किया हुआ है then he will take a picture also. मैंने for example अपना ड्राइव से लिया है तो then I will click on the my drive option and again I will select just wait. No drive में है। For example, this is my file. I'll select it. Doesn't matter. And turn in. Submit it. Submit it. अंबू सर माइक ऑफ करिए, अंबू सर माइक ऑफ करिए, अंबू सर माइक ऑफ करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैम ने वहाँ पे पेपर सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद जब मैं अपना वापस क्लास खोलूंगा, जैसे मैंने ये क्लास बनाया हुआ था, इसको जब मैं वापस अपना खोलूंगा तो आई कैन सी दैट कि मैंने ये लास्ट असाइनमेंट दिया था 142 पे और मैं इसमें ये देखना चाहता हूँ कि इसे किसने किसने सबमिट किया है। तो मैं इस असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अभी तक 0 असाइन। मैम आई हैव शोन ओनली 0 असाइन, हैंडेड इन कुछ नहीं आ रहा है। आप फिर से सेंड कीजिए। तो अभी तक मैम ने भी अपना पेपर करके मुझे सबमिट नहीं किया है, तो यहाँ पे 0 असाइन शो कर रहा है। जैसे ही मैम इसे सबमिट कर देंगी तो यहाँ पे 0 असाइन की जगह पे 1 असाइन शो करने लगेगा और मैम के नाम के आगे असाइंड लिख कर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अभी सबमिट हो जाएगा थोड़ी देर में।
सर बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आया है हसन सर, समझ में नहीं आ रहा मैम बहुत अच्छे से। मैंने रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है, मैं इस चीज को आप लोग को वापस पर्सनली सेंड भी कर दूंगा हाँ, और क्योंकि बच्चे तो चीजें बिल्कुल आप ही लोग को नहीं और समझ अच्छे से पाएंगे। एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मे भी शायद अभी बच्चों को कैसे समझ थोड़ा में आएगा डिटेल में सर? नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा है। बच्चों को कैसे समझ में आएगा? मैम बच्चों को जैसे भी अभी तक बच्चे अपने असाइनमेंट करते आ रहे थे, जैसे सबमिट करते आ रहे थे, उनको वैसे ही सबमिट करना है, कुछ भी नया नहीं है। ओके अभी मैम ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, जैसा अभी मैम ने आप लोग को करके दिखाया था सेम टू सेम वैसे ही उन्होंने किया है, कुछ भी नया नहीं था। उन्होंने पहले क्वेश्चन पेपर खोला, उसे रीड किया, देन एक पेपर पे उन्होंने अपना आंसर लिखा, उसकी फोटो क्लिक करके उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। ओके पीडीएफ फाइल में सेंड कर दिया है, अब मैं उसे देख सकता हूँ। तो मैम के नाम क्या क्या साइन लिख के आ रहा है, तो मैंने उस पर क्लिक किया। देन यहाँ पे मैम का वर्क जो भी उन्होंने मुझे भेजा है वापस, वो मेरे पास आ चुका है, ये शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और मैम ने नीचे एक मैसेज भी लिखा है, सर प्लीज चेक। तो अगर कुछ इस तरह का और भी कोई कमेंट है तो बच्चे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैम की पहले आंसर कॉपी खोली और ये मैम की आंसर कॉपी खुल गई है, आप सभी लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके देन इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऊपर की तरफ राइट साइड पे एक पेंसिल का एक आइकन दे रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज एक पेन की तरह है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे मुझे इसके अलग अलग कलर और इसके बोल्ड और थिक होने का अलग अलग ऑप्शन शो करता है। हम इस पॉइंट को जितना छोटा कर देंगे हमारी पेन की नोक उतनी थिक हो जाएगी, और जितना ज्यादा हम बड़ा कर देंगे पॉइंट को उतनी ज्यादा मोटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटा लिया, फिर ये मैंने छोटा वाला सर्किल लिया तो ये और थिक हो गई लाइन। और उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक रेजर का ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम इसे इरेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा पेन में हमारे पास अलग अलग कलर भी अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास एक पेंसिल भी अवेलेबल है, पेंसिल टाइप अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारे पास एक हाइलाइटर भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैम ने जो आंसर लिखा है उस आंसर में कोई एक चीज थोड़ी सी मिसमैच है या गलत है, तो मैंने उसे हाईलाइट कर दिया ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि ये चीज गलत है। देन उसके बाद मैंने उसे पेन से चेक कर दिया, उनके सारे क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए। देन हम यहाँ पे अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हम वैसे क्वेश्चन पेपर रेड पेन से चेक किया जाता है तो हम रेड पेन यूज करते हैं, रेड कलर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया और सब कुछ चेक कर दिया। देन उसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर 20 नंबर का बनाया था, मैम का एक चीज गलत हो गई तो उस हिसाब से मैंने उनको 17 मार्क्स दिए ओवरऑल 20 में से। और उसके बाद फिर मैंने इसे सेव कर दिया। ऊपर राइट साइड पे जो 3 डॉट्स दे रहा है उस पर क्लिक करके मैंने इसे सेव कर दिया। देन व्हेन इट इज सेव तो ऊपर की तरफ अभी भी मेरे पास एक ऑप्शन दे रहा है एडिट मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स ऐड कर दिए। 20 में से मैम को मैंने 17 मार्क्स दिए थे तो यहाँ पे 17 कर दिया। देन मैंने इसे रिटर्न कर दिया। ऊपर रिटर्न का ऑप्शन दे रहा है, मैंने उस पर रिटर्न पे क्लिक करके ये चीज मैंने रिटर्न कर दी। तो एज अ स्टूडेंट अब जब बच्चे स्टूडेंट अपने फोन में इस चीज को खोलेगा तो उसके फोन में कैसे शो करेगा और वो अपनी कॉपी कैसे देख सकता है और अपने मार्क्स कैसे चेक कर सकता है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। So this is a Google Classroom. Again, I will click on the meeting online exam. It's not working. Then I will click on the classroom classwork. Look at that at the bottom your work. हसन सर ने मुझे पीडीएफ फाइल भेजा हुआ है, वहां पे 17 मार्क्स दिखा रहा है। एंड देन एडिट फाइल
बी जो हम चेक करके स्टूडेंट्स की कॉपी भेजेंगे वो एज ए एडिट फाइल सबमिट होगी, और वो एडिट फाइल कुछ इस तरह से दिखेगी। बेसिकली हम सारे टीचर्स स्टूडेंट्स को डेली असाइनमेंट्स भेजते हैं आई गेस, तो असाइनमेंट्स में एज सच कुछ नहीं है, वही सेम असाइनमेंट प्रोसीजर हमें फॉलो करना है गूगल क्लासरूम के साथ। गूगल क्लासरूम में जाना है, देन क्लासरूम पे जाना है, आफ्टर क्लासरूम एक देयर इज अ प्लस ऑप्शन, उस पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन प्लस ऑप्शन देयर इज अ असाइनमेंट ऑप्शन ओवर देयर, उस असाइनमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। असाइनमेंट ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लुक एट दैट क्लास वर्क पे क्लिक करना है। अगेन दिस इज अ प्लस आइकन, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, देन असाइनमेंट में क्लिक करना है। विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट ऑप्शन हमें अपना लिंक और जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, हम जो भी अटैच करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे अटैच कर देंगे। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो बस अटैच कर देना है। अपने अकॉर्डिंग सारी सिक्योरिटीज मेजरमेंट यहाँ से चेक कर लेने हैं। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर है, तो 40, 80 मार्क्स का है देन 80, 20 मार्क्स देन 20, एंड ड्यू डेट डिसाइड कर देनी है। वन मोर थिंग, AM एंड PM का बहुत एक याद ही रखना है, क्योंकि हम लोग भी काफी बार अभी इसको क्रॉस चेक करने में भूल गए थे कि हमने AM और PM से चेंज नहीं किया था। सो AM एंड PM का बहुत अच्छे से याद रखना है। आप यहाँ पे एनी टॉपिक जो भी आप डालना चाहें वहां पे इजीली यहाँ पे पिक कर सकते हैं। देन सेंड ऑप्शन है ऊपर टॉप मोस्ट लाइन पे, वो सेंड ऑप्शन पे क्लिक करके बच्चों को असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी बच्चों के पास असाइनमेंट जाएगा, तो जैसे हसन सर ने अभी मुझे असाइनमेंट असाइन किया था, तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा था, दिस इज अ असाइनमेंट। जब हम बच्चों को कोई भी असाइनमेंट भेजते हैं तो बच्चों के पास कुछ ऐसा सा ब्लूप्रिंट आता है, वो बच्चे ऐसे देख पाते हैं। तो जब भी वो PDF फॉर्म पे या कोई हमारा लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, तो वो डेफिनेटली अगर लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो वो सेम पोर्टल पे जाके उसको चेकआउट करेंगे, क्रोम पे जाके वो ओपन होगा, और अगर वो PDF फाइल है तो वो डायरेक्ट PDF फाइल ओपन हो जाएगी वहां पे। आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन पेपर वो नीचे ऐड अटैचमेंट पे जाएंगे। मैंने क्लास 6 to 8 जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्लास हो सकती है असाइनमेंट के लिए, ऑलरेडी बताया हुआ है कि उन्हें PDF में कैसे कन्वर्ट करना है और असाइनमेंट भेजना कैसे है, तो वो स्टूडेंट्स को भी क्लियर है। लिली मैम मैथ्स के असाइनमेंट्स भेजते ही रहते हैं, हिंदी में भी असाइनमेंट्स जाते रहते हैं, तो इवन हम लोगों ने अभी हॉलीडे होमवर्क भी बच्चों के साथ डिस्कस किया था, तो वो असाइनमेंट में ही डिस्कस किया था, और पदम सर इस वाले टॉपिक को बहुत पहले ही क्लियर आउट कर चुके थे। नीचे से पेन वाला जो एरिया है वहां से आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक पेन पिक करना है, पेंसिल पिक करनी है, चेक करना है, हाईलाइट करना है। अगर आप वहां पे कोई मार्क्स ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ऐड करिए, नहीं तो वो सेम एडिट फाइल आप सबमिट बटन के थ्रू सबमिट कर दीजिए। मार्क्स ऐड करने का ऑप्शन आपको अलग से देगा। ओके लिली मैम, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Now, Padam sir, Yes, ma'am. now please explain the third point of the meeting, how to enter marks by the student in first term exam, how teacher will enter the marks in their sheet. जी जी, सभी को नमस्ते। ये अभी हम लोग एग्जाम रूम की तरफ से ई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें ऑटो रिपोर्ट कार्ड जनरेट, प्रिपरेशन, प्रमोशन लिस्ट सब ऑटो जनरेट होगा उसमें। तो देखिए ये एक सैंपल है अभी टर्म 1 का मार्क स्लिप का। इसमें जितना कलर्ड पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, ये कलर्ड वाले कॉलम्स जो दिख रहे हैं इनको आपको फिल नहीं करना है, ये सब ऑटो फार्मूला फीडेड है, इसमें सब आपका डेटा ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा और आपको अपनी क्लास के पूरे स्टूडेंट्स की एक एक परफॉर्मेंस आपको व्यू हो जाएगी। और इसी तरीके से यही सेम डेटा जो हम पेरेंट को भेजेंगे अभी टर्म 1 का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ओवरऑल,
तो पूरा सेम जैसा एज इट इज आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है, एज इट इज उनको भी इसी तरीके से दिखेगा पूरे साल की उनकी परफॉर्मेंस टर्म 1 तक। तो देखिए अभी हमने इस मार्क स्लिप में क्या किया हुआ है, आपको देखिए सबसे पहले ऊपर मैंने एक क्लास सेक्शन येलो कलर का एक बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको क्लास और सेक्शन फिल करना है। फिर आपको इसके बाद अपने नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर यहाँ फिल करना है येलो बॉक्स में इस तरफ, और आपको अपना सब्जेक्ट फिल करना है, और आपको ऑलरेडी देखिए रोल नंबर असाइंड है ये, बस आपको अपनी गूगल फॉर्म से जो आपने टेस्ट ले रखे हैं उनसे आपको स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पेस्ट कर देने हैं रोल नंबर वाइज, सब ये मैंने फिल कर रखा है ऑलरेडी इसमें। बस आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट जो टेस्ट 3 टेस्ट हुए हैं उनके मार्क्स आपको भरने हैं। उसके बाद जब आप इसमें मार्क्स भर देंगे तो ये देखिए एक सैंपल मैंने फिल किया हुआ है, देखिए एक स्टूडेंट हमने डमी ले लिया अभिजीत सिंह, ये क्लास 6 to 10 के लिए है। इसी तरीके से मैंने 11th का मार्क स्लिप भी बना रखा है और 11th 12th का सेम वही सेम प्रोसीजर, उसमें भी प्रोटोकॉल फॉलो होगा। अब देखिए आपको क्या करना है सर और मैडम, आपको सिर्फ यहाँ पे मार्क्स फीड करने हैं स्टूडेंट के। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेस्ट 2 आउट ऑफ 40 वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ये जितनी कलर्ड वाले कॉलम है इनको आपको टच नहीं करना है, और आपको पीरियोडिक टेस्ट आउट ऑफ 10 भी कैलकुलेट हो जाएगा। इससे आपको अपने स्टूडेंट की इंडिविजुअल हर एक बच्चे की आपको पूरी परफॉर्मेंस अभी से ही विजिबल होती रहेगी। फिर ये देखिए नोटबुक्स के मार्क्स हैं, सब्जेक्ट इनरिचमेंट के मार्क्स हैं, और ये दोनों देखिए आप देखते हैं कि हर बार हम लोग इस तरीके से भरते हैं पीरियोडिक टेस्ट को। टर्म 1 तक इस तरीके से लेते हैं कि पीरियोडिक टेस्ट आउट ऑफ 10, नोटबुक 5 मार्क्स, सब्जेक्ट इनरिचमेंट 5 मार्क्स, तो टोटल 20 मार्क्स। तो देखिए ये ऑटो कैलकुलेट होके आ रहा है। फिर ये जो अभी हाफ ईयरली यानी टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, ऑनलाइन सब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, प्रोजेक्ट, होमवर्क, वाइवा, पंक्चुअलिटी, जितना ये व्हाइट आपको रोज दिख रही है इन्हीं में सिर्फ आपको मार्क्स एंटर कर देने हैं। और ये देखिए आउट ऑफ 50 ग्रांड टोटल टर्म 1 अप टू, और जिस तरीके से टर्म 1 का जैसे ये टोटल आएगा उसके हिसाब से स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रेड आ जाएगी। इन केस आपका कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल भी एब्सेंट रहा, कोई भी टेस्ट नहीं दे पाया अभी टर्म 1 तक क्योंकि उसकी फीस नहीं जमा थी, या किसी कारण से कोई टेस्ट नहीं दे पाया, या किसी टेस्ट में मिस था, तो आगे देखिए लास्ट कॉलम आपको दिख रहा है रिमार्क्स, तो आप रिमार्क्स वाले कॉलम में आप छोटा सा मेंशन कर सकते हैं कि एब्सेंट इन ऑनलाइन टेस्ट 2 और एब्सेंट इन पीरियोडिक ऑल पीरियोडिक टेस्ट, इस तरीके से आप अपने रिमार्क के लिए। तो ये देखिए आपकी एक सिंगल कॉपी है, सिंगल पेज है ये, और इसमें आपको अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ऑनलाइन टेस्ट 1 से लेके अप टू टर्म 1 तक की, इसी तरीके से सेम टर्म 2 का भी भरना होगा बाद में। अब ये पूरा जब आप इस तरीके से कंसोलिडेट आप जब इसका प्रिंट आउट लेंगे एग्जाम रूम से, तो देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। एक सिंगल पेज में आपको, जैसे मान लीजिए लेट करिए हम 6A में पढ़ाते हैं, तो ये 6A की ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरे सब्जेक्ट की एक सिंगल पेज में होगी अप टू ग्रेड तक। तो वो पेरेंट भी, अगर हम इसको पेरेंट्स को भी भेजते हैं तो पेरेंट को भी देखिए हर चीज क्लियर होगी कि किस तरीके से उस बच्चे ने उनके टेस्ट दिए और बेस्ट 2 किस तरीके से आया, और वो किस तरीके से उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, और फाइनली ग्रेड क्या है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से सेम प्रोटोकॉल हमने 9th 10th 11th 12th सबके लिए अलग अलग मार्क्स स्लिप जिस हिसाब से उनके मार्क्स का वेटेज है बनाया हुआ है। बस आपको नेम फिल करने हैं, और ऑनलाइन टेस्ट के ये जो व्हाइट कॉलम्स आपको दिख रहे हैं जैसे, बस इसी में आपको मार्क्स अपने गूगल फॉर्म से निकाल के, जो आपके पास 3 टेस्ट आपने कंडक्ट कराए थे, चाहे तो आप टाइप करके भर दीजिए या आप कॉपी पेस्ट करके, जिस तरीके से आपको अपना सुविधा रहे उस तरीके से भरेंगे, तो आपको एक कंसोलिडेट रिपोर्ट कार्ड जैसा ब्रॉड शीट, आपकी रिजल्ट शीट अप टू टर्म 1, और ये सीट फिर आपको एग्जाम रूम को भेज देनी है व्हाट्सएप में, जो अपना ग्रुप है उससे क्लास टीचर को मिल जाएगा ये। तो देखिए क्लास टीचर के लिए भी मैंने एक रोल असाइन किया हुआ है, ये ई रिपोर्ट कार्ड, ये देखिए क्लास टीचर का बायोडाटा वाला पेज है।
ये हमें काम आएगा प्रमोशन लिस्ट में। और जैसे देखिए कभी कभी आप देखते हैं कभी स्कूल से ये इंफॉर्मेशन मांग ली गई कि कितने सिविलियन स्टूडेंट हैं, कितने एयरफोर्स एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें देखिए आप जब इसमें फिल कर देंगे तो ये क्लास टीचर को ऑटो सारा डेटा निकाल के दे देगा। तो बाद में फ्यूचर में हम लोग को बहुत काम आने वाला है। फर्स्ट टाइम जरूर हम लोग को इस बार थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, और इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब प्रमोट होके क्लास जाएगी तो ये जो नेक्स्ट सब क्लास टीचर होंगे उस क्लास के, उनको सब चीज ऑटो फीडेड मिलेगी। यानी हम भी किसी क्लास के क्लास टीचर होंगे, मीन्स कि आज इस साल हम 8th के हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर हम 7th के हैं तो 6A से हमें पूरी सीट मिल जाएगी। और ओवरऑल स्टूडेंट का एक एक डेटा हमारी सीट में होगा। कभी हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मांग ली गई तो इसमें जब हम बायोडाटा में आप भरोगे तो नीचे इसमें देखिएगा फार्मूले लगे हुए हैं, आपको ये बता देगा टोटल एक्स सर्विसमैन कितने होंगे, टोटल फीमेल कितने, टोटल मेल स्टूडेंट कितने, सब कुछ आपको इसमें एक सीट में एक सिंगल पेज में आपकी पूरी 6A है जैसे क्लास आपकी, तो पूरा डेटा आपको सिंगल सीट में अवेलेबल रहेगा और आपकी सारी डिपेंडेंसी रजिस्टर की कम हो जाएगी। और इसका आप स्क्रीनशॉट रखें या ये फाइल रखें, आपसे अचानक कभी भी मांग लिया जाए तुरंत आप बायोडाटा पेज में जाएं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस मिल जाएगी। और जो मार्क्स आप फीड करेंगे जो क्लास सब्जेक्ट टीचर्स, तो देखिए सब्जेक्ट टीचर जब मार्क्स फीड करेंगे तो क्लास टीचर उसमें से क्या करेंगे, वो जो सब्जेक्ट टीचर के मार्क्स आए वो इसमें पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट कार्ड पूरा ऑटो जनरेट हो जाएगा। और बस हमें इस रिपोर्ट कार्ड में बस एक प्रिंट बटन दबानी है, पूरे 45 स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड ऑटो जनरेट हो जाएगा, सारा डेटा इसमें अपने आप भर जाएगा। तो आगे हमें फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। और लेकिन अभी थोड़ी सी मेहनत जरूर पड़ेगी। तो जैसा हमें प्रिंसिपल सर ने इंस्ट्रक्शंस दिया था कि हम ऑनलाइन ही रिपोर्ट कार्ड भेजना चाहते हैं इस बार, तो उसके लिए मैंने कोशिश करा कि किस तरीके से डेटा को कंसोलिडेट किया जा सके। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को थैंक यू कि गूगल क्लासरूम के जो व्यूज है स्टूडेंट से मैं रिव्यू लेता रहता हूं बीच में, तो इतने बढ़िया आ रहे हैं कि बाकी स्कूलों में तो जैसे स्टूडेंट इन केस आता है तो हमें एडमिट करना पड़ता है। हम लोगों ने इसका भी सोल्यूशन खोज लिया कि ऑटो एडमिट हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा एक दो चीजें। और अगर आपको कभी गूगल क्लासरूम में कोई क्लास लेने में प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर शेयर करिए। तो हम जैसे अभी हमको क्या कहते हैं गेम्स वाली मैम शुक्ला मैडम ने हमको लास्ट डे बताया, तो मैंने गूगल को भेजा है कि अगर इन केस हम कोई वीडियो गूगल मीट से शेयर करें तो उसकी वॉइस भी स्टूडेंट को एज इट इज जाए, जैसे हम लोग आपस में गूगल मीट में जब हम कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। मैम मैंने वो भेज दिया है शैलजा मैम। और तो जो थैंक यू सर। हाँ, तो मैम इस तरीके से देखिए हम खुद कोशिश करते हैं कि नया सीखें और हम जो है सब लोगों से पूछते भी रहते हैं। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप क्लास गूगल मीट से लेते हैं तो प्लीज आप व्हाट्सएप में ये मेंशन कर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब प्रिंसिपल सर क्लास आपकी विजिट करना चाहते हैं तो वो ढूंढ नहीं पाते अगर आप डुअल क्लास ले रहे हैं। तो अगर आप जैसे 10th बी कंबाइन ले रहे हैं तो आप 10th में मेंशन कर दें कि 10th बी के आप क्लासरूम के थ्रू गए हुए हैं या 10th के। तो कम से कम जब कोई टीचर है जिसको विजिट करना है आपकी क्लास, इन केस जैसे ईडी सर को या प्रिंसिपल सर को, तो वो आपकी क्लास में डायरेक्ट आ जाए, उनको ढूंढना न पड़े। और जो आप लोग लिंक शेयर करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि लिंक शेयर करते हैं क्लास खत्म होने जाने के बाद उस लिंक को डिलीट कर दें। आप वैसे लिंक शेयर ही मत करिए। आप एक दिन बस स्टूडेंट को क्लास में जाइए, उनको ये बोलिए कि आप बस जैसे आपकी क्लास 9:35 पे है तो 9:35 के बाद आपको हम व्हाट्सएप में टेक्स्ट करते हैं 9:35 पे कि ज्वाइन नाउ। देन आपको बस अपनी क्लासरूम ओपन करनी है और उसके वीडियो आइकन में क्लिक करना है मेरे मैसेज के बाद। आप ओके मिस्टर पदम। आपको जी सर। पदम जी सर। जी सर। हाँ, अब और कुछ भी है मतलब रिलेटेड टू एग्जाम, इफ एनीथिंग इज देयर प्लीज कंटिन्यू, अदरवाइज वी कैन कॉल ऑफ द मीटिंग। जी जी सर। ओके सर। लिली मैम, लिली मैम
Yes, sir. Sir, अभी is there revision anything timetable- more important? Yes, sir. और कोई चीज छूटी है? रिवीजन टाइम टेबल अभी हम लोग सेंड करेंगे, इन बिटवीन गैप्स Okay. वो हम लोग बच्चों को क्लास कराएंगे। ठीक है लिली मैम, so we'll call off the meeting and before dispersal ना please have the word with me, मिल के जाइएगा। And thank you very much exam cell and thank you very much to computer department also. Now you all can pack up. I believe class teachers ने अपना जो fee वाला था dues वो दे दिया है। Okay? So thank you very much. Now we all can leave the meeting. Fine? See that we all are leaving ourselves. Okay? Leaving भी आना चाहिए. I believe everyone knows it. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. सौरभ सर, सौरभ सर, सौरभ सर जा चुके हैं।